Hello guys, I am Mitesh Tripathi and this is a tutorial video from Code Chef Starter 53. Make it one. Okay, so problem acha hai. That's why I'm making a video related to graphs. You can say DFS and Sieve prime factorization. So we will see the tutorial. We will see the pseudocode also and with approach obviously. But before that, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go subscribe this YouTube channel and like this video and share this video to your friends. Also, if you are also preparing for your placements or worried about your placements, you can just go for Newton School Pay After Placement program, in which they will train you as a full stack developer. And not only this, you will also get placed in any of the company. Okay. Now, what's the surety? Because you don't need to pay even a single penny of money until and unless तुम किसी भी company में place नहीं हो जाते हो, and that is you don't need to pay any upfront fees before your placement. Okay, so you can just go and check this program and you can get the link in description for registration and further queries. Now, here's the problem. Make it one from code chef. Let me just get it full screen. Chef is given a positive integer n. We have to convert it to one using sum operation. Simple सा question है. N given है, हमें one में convert करना है. एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक प्राइम चूज करें और उस प्राइम से हम n को डिवाइड कर दें. ठीक है, तो सपोज 6 है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो गए, 3 into 2. ठीक है, तो तुमने या तो 3 चूज कर सकते हो या तो 2 चूज कर सकते हो. ठीक है, और उसको एक बार डिवाइड कर दो उससे और सिंपली n को n by p से रिप्लेस कर दो, where p is a prime factor of n. Now, chef is also given some triggers to form of the form of ab, okay, where a is prime. Thus, if we divide by p in some operation, we also have to multiply by x for all triggers of the form p by x. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि sorry guys for background noise, let me just put it on silent. Okay, fine. So chef is यहाँ पे ये बोल रहा है that there are some form of triggers. ठीक है, a और b के फॉर्म के, जहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे p से डिवाइड कर रहे थे, तो जैसे ही हम अगर कोई ट्रिगर गिवन है हमें p ऑफ p x के फॉर्म का, तो जैसे ही हम p से डिवाइड करेंगे उसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है, if n is equals to 18 और ट्रिगर 3 4 3 2 एग्जिस्ट करते हैं, तो in one operation we choose to divide by 3, we have to multiply the result by 4 and 2. ओके, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरह के दो ट्रिगर्स हैं तो 3 से अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद 4 and 2. डोंट गेट कंफ्यूज इन इट. ठीक है, अगर दो ट्रिगर्स हैं तो दो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, ना जैसे ही तुम 18 को जैसे कि डिवाइड करोगे 3 से, तो वो तुम्हारा कितना बन जाएगा, 48. तो इस केस में तुम्हें कहीं ना कहीं एक डाउट आ रहा होगा कि हम क्या n को 1 बना भी पाएंगे कि नहीं. तो उस केस के लिए अभी हम देखेंगे इस वीडियो में, मतलब इसी अप्रोच में, क्वेश्चन में, कि पॉसिबल है कब कब नहीं है, कब -1 प्रिंट करना है. ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है, n and m and m triggers हैं of the form ab where a is always prime. बिकॉज हमें a से प्राइम से डिवाइड करना है, तो a क्रॉस a कॉमा b के फॉर्म के ट्रिगर गिवन है. Find the minimum number of operations required to convert n to 1 modulo this. Otherwise print -1. तो n को n 1 में कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा ऑपरेशंस भी लग सकते हैं, तो मॉड्यूलो प्रिंट करना है. फिर ओके, देयर आर टू मेनी हर्डल्स, काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं. n की वैल्यू 10⁻6 है, m की वैल्यू 10⁻5 है, फिर a और b की वैल्यू 10⁻6 तक है. a इज अ प्राइम नंबर ऑलवेज. एक टेस्ट केस भी गिवन है 6 1 2 3. ठीक है, तो 6 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 और 3 दो नंबर से डिवाइड करना है. बट जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एक ऑपरेशन में हमने 2 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, तो अब वो बन गया 9. तो हमें एक बार 3 से डिवाइड करना पड़ेगा सेकेंड ऑपरेशन, फिर से एक बार 3 से डिवाइड करना पड़ेगा थर्ड ऑपरेशन. तो आंसर 3. ओके, फाइन. नाउ लेट्स जस्ट सी द अप्रोच व्हाई आई वाज कॉलिंग इट अ डीएफएस प्रॉब्लम. ठीक है, सपोज तुम्हें एक चीज चेन दिख रही होगी. चेन कैसे, तुम्हें सपोज नंबर n गिवन है और n गिवन है तुम्हें सपोज 27. ठीक है, और इसको 27 की जगह 12 ले लेते हैं. 12 इज मोर गुड, उसमें 2 और 3 दोनों आ रहे हैं. ठीक है, 12 के प्राइम फैक्टर्स अगर मैं लिखूं
तो 2 × 2 × 3, हमें 2 बार 2 से डिवाइड करना है, 1 बार 3 से, बट देयर कैन बी सम ट्रिगर्स ऑल्सो। लेट्स जस्ट से ट्रिगर है 5 से डिवाइड किया तुमने अगर, तो तुम्हें 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 2 से डिवाइड किया अगर तुमने, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फाइन ना। अब यहाँ पे एक चीज तुम देखोगे कि 12 को मैंने क्या किया, एक ऑपरेशन में 2 से डिवाइड किया, और मुझे जैसे ही 2 से डिवाइड करना है वैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या बोला कि 2 पे 3 जोड़ देते हैं हम, ठीक। फिर से 2 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से 3 से डिवाइड किया अगर, ठीक है, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, फाइन। अब 5 से डिवाइड किया तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एक ये मैंने जोड़ दिया। फिर अब ये देखोगे तुम कि क्या मैं इस 12 को बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑब्वियसली। तो बेसिकली एक चीज तुम्हें यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि मैंने अगर ये जो ट्रिगर्स हैं इनसे ग्राफ बनाया है तो किस लिए बनाया है, कि कभी भी मान लो मुझे टोटल 3 नंबर्स हैं जिनसे मुझे डिवाइड करना है, जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो मैं 2 का, अगर मुझे खाली एक 2 का पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने हो कि मुझे इसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि 2 से डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो मैं ये वाला ग्राफ चेक कर सकता हूँ ना, इस पे डीएफएस लगा सकता हूँ, और 2 से डिवाइड करने के बाद एक ऑपरेशन यहाँ लगा, फिर इसी में 3 भी जुड़ा है तो मुझे 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दूसरा ऑपरेशन, तो इस पे 2, तो एक 2 को हटाने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 लगेंगे, इस 2 को हटाने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 लगेंगे, और इस 3 को हटाने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 लगेंगे। सिंपल सी चीज, ठीक है। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, ग्राफ का कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हाँ ग्राफ का हम यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया जब तुम्हारे 5 के ट्रिगर्स में जो बी की वैल्यू थी वो भी एक प्राइम थी, ठीक है, ओके, ये 12 था। अब मैं यहीं पे अगर 2 में लिख लूं कि 9 है, ठीक है, तो अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 2 3 3, ऐसे तुम कह सकते हो, ठीक है। तो 2 से जब भी डिवाइड करोगे तो 2 से तुम्हारा एक क्या बनेगा, 3 के भी नंबर ऑफ ऑपरेशन ऐड करने पड़ेंगे, और वो भी 2 टाइम्स, 2 बार 3 हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम ऐसे ले सकते हो। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ग्राफ का यूज हो जाएगा। अब दूसरा केस आता है -1 वाला सीन, कब आंसर तुम्हारा -1 हो सकता है, ठीक है, तो वो तुम्हारा कब हो सकता है, जब तुम्हारा लूप बन रहा हो। ग्राफ के लूप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जब तुम्हारा इन ऑपरेशंस में कहीं पे लूप होल क्या हो सकता है, 12 को हमें 1 बनाने में 2 × 2 × 3 से करना, राइट। बट इन केस अगर यहाँ पे मुझे कोई ट्रिगर दिया होता 2 या 2, ठीक है, या फिर ट्रिगर दिया होता 2 3 और 3 2, ऐसे ट्रिगर दिए होते, तो बेसिकली होता क्या, मैं 2 से डिवाइड करने में जब भी करता तो 2 से डिवाइड करने में इसमें 3 ऐड करता, और फिर जब 3 से डिवाइड करता तो वापस से 2 ऐड कर देता, राइट। तो तुम कह सकते हो कि ये एक लूप बन गया मेरा यहाँ पे, राइट। कहीं पे एक लूप बन रहा है मेरा, कि अगर 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 से डिवाइड किया तो 2, तो ये एक काइंड ऑफ साइकिल बन गई, एंड इन दैट केस मेरा आंसर -1 हो जाता। साइकिल ये चीज मैं किससे डिटेक्ट कर सकता हूँ, सिंपली ग्राफ से, जब भी मुझे अपना विजिटेड नोड मिल जाएगा, कभी भी मैं मान लो नंबर ऑफ ऑपरेशंस फॉर 2 निकाल रहा हूँ, ठीक है, 2 × 2 × 3 में मैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस फॉर 2 निकाल रहा हूँ, और मुझे कभी भी विजिटेड नोड मिल गया, इन दैट केस आई कैन से कि एक लूप है, यस, क्योंकि मैं इस नंबर को पहले हटा चुका था और ये नंबर मेरे पास फिर हटाने के लिए आ गया, राइट। 2 को हटाने तुम गए थे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू रिमूव 2 निकाल रहे थे, ठीक है, और हटाते हटाते वापस से तुम्हें 2 मिल गया, इट मीन्स कि तुम लूप होल में हो, राइट। 2 को हटा चुके थे, वापस से हटाना में पड़ रहा है, तो लूप होल में हो, इन दैट केस तुम वहीं से डीएफएस को एंड कर सकते हो,
ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे दो कंडीशंस, कैसे तुम अपना डीएफएस यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, कब तुम्हारा आंसर -1 बन सकता है, जब तुम्हें विजिटेड नोड मिल जाए या फिर लूप होल बन जाए कि कोई ट्रिगर ऑपरेशन तुम कर रहे हो और वापस से वो सेम नंबर ऐड कर रहा हो। ये वाला केस मैंने समझा दिया, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज है, तुम्हें करना क्या है, एन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एन की वैल्यू गिवन है, अब एन के प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हारे पास होंगे, सपोज 2 × 2 × 3, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, पहले नंबर में जाओगे, 2 से नंबर ऑफ ऑपरेशन अपना आंसर लोगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस में नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू रिमूव 2, सपोज x, प्लस वापस से x + 3 x डैश, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये कैसे निकालोगे, डीएफएस लगा के, डीएफएस ऑफ 2, ये तुम्हें क्या दे देगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू रिमूव x, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि अ, ये वैल्यूज तुम्हारी रिपीट हो सकती हैं, राइट। x और x तुम्हारा रिपीट हो सकता है, तो यहाँ पे डीएफएस ऑफ 2 जब भी तुम निकालो तो इसको स्टोर कर लो कहीं पे, कॉस्ट ऑफ 2 मेरे पास एक बार निकाली तो वो स्टोर हो गई, सपोज x, ठीक है। तो जब भी तुम्हें दोबारा x के लिए निकालना है तो वो, ये ऑप्टिमाइजेशन हो गया तुम्हारा एक तरीके से, ठीक है। एक ऑप्टिमाइजेशन ये हो गया। दूसरी चीज, डीएफएस कैसे लगाओगे, ये हो गया। एक और ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकता है, ये निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, राइट। सपोज ये तो हो गया एन के प्राइम फैक्टराइजेशन जो तुम एक बार में कर सकते थे, 2 × 2 × 3, बट एक और चीज हो सकती है कि तुम्हारे ट्रिगर्स जो गिवन है, ये दूसरा ऑप्टिमाइजेशन बता रहा हूँ, जो तुम्हारे ट्रिगर्स गिवन है वो A × B के फॉर्म के हैं, राइट। A × B में ये तो प्राइम है, बट इसका क्या, जब तुम अपना ग्राफ बिल्ड करने आओगे तो मत सपोज ये तुम्हारी वैल्यू गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई करने में, 2 से डिवाइड करने में 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ऑब्वियसली तुम अपना ग्राफ कैसे बनाओगे, तुम्हें अगेन 12 के प्राइम फैक्टर्स चाहिए, 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 3, राइट। तो इन केस तुम ऐसा बोलोगे कि 2 से डिवाइड करने में, ये जो ट्रिगर है ये तुम्हारा ऐसा है कि 2 से डिवाइड करने में तुम्हारा 2 × 2 × 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, और उस केस में तुम्हें 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। तो तुम वो ऐसा कर सकते हो कि सीव का वैल्यू, सीव का हेल्प ले सकते हो, या फिर तुम एक एरे बना सकते हो, ठीक है। जिसको तुम कुछ भी नाम ले लो, कैपिटल ए नाम ले लिया, और तुम्हें क्या देगा ये, ये जो ए ऑफ आई है, ये तुम्हें स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ आई देगा, ठीक है। तो सपोज अब तुम यहाँ पे 12th इंडेक्स में हो, ये आई इज इक्वल्स टू 12 है, ठीक है। और 12th इंडेक्स में तुम्हें स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ आई दे दिया, 2, ठीक। अब तुम सिंपली क्या करोगे, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ आई मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह तुम्हारे 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जैसे ही 2 से स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करोगे तो कहाँ पे आ जाओगे, आई इज इक्वल्स टू 6 में, राइट। आई इज इक्वल्स टू 6 में भी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, 2 से वापस से डिवाइड कर दोगे तो कहाँ जाओगे, आई इज इक्वल्स टू 3 में, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 3, जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे 1 में, 1 का हमें चेक नहीं करना। तो इस तरह से तुम एक एरे बना सकते हो, कैपिटल ए या जो भी तुम्हें नाम रखना है, जहां पे कैपिटल ए ऑफ आई तुम्हें क्या गिवन होगी, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ आई, ठीक है। जैसे ही तुम उससे डिवाइड करोगे तो तुम उसके वापस उसमें जाओगे, फिर वापस उसके उसमें जाओगे, तो ये काइंड ऑफ तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हें सारे के सारे किसी भी नंबर n के तुम्हें सारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लॉग ऑफ n, राइट। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स लॉग ऑफ n। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हो गई, अब इनको सम अप करते हैं, और सम अप करके हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। सम अप कंक्लूजन में क्या करता हूँ, तुम्हें कोई भी नंबर गिवन है, तुम्हें उसके प्राइम फैक्टर्स जाने हैं, प्राइम फैक्टर्स जाने के लिए तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम ये वाली एरे का यूज कर सकते हो। तुम्हें n की वैल्यू गिवन है, ठीक है, n की वैल्यू सपोज 12 थी, तुम एसपीएफ या कैपिटल ए ऑफ 12 देखो, 12 में तुम्हें मिला 2, ठीक है। तो डीएफएक्स
डीएफएस ऑफ 2 अपने आंसर में ऐड कर दो, और आंसर में ऐड करने के जस्ट बाद तुम उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, फिर तुम्हें 6, फिर तुम्हें 3, इस तरह। ये वाली एरे कैसे बिल्ड करनी है ये तुम्हें अभी प्रॉब्लम कोड में दिखा दूंगा मैं। ठीक, और ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आई होप मैंने पूरा कंक्लूड कर दिया है। और अब देखते हैं, कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैक्स वैल्यू ले ली। ठीक है, ये दो वेक्टर लिए मैंने यहाँ पे। एक वेक्टर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ आई, ये बताएगा, और कॉस्ट में मैं स्टोर करूंगा डीएफएस से जो भी मेरी हर नोड की कॉस्ट निकल के आएगी। मान लो 2 को 2 से डिवाइड करने पे मुझे इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं, तो मैं वो ये स्टोर करूंगा। फिर ये एडजेसेंसी वेक्टर ले लिया, वेक्टर ऑफ वेक्टर टू स्टोर द ग्राफ। यहाँ पे मैं अपनी बिल्ड कर रहा हूँ स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर एरे। ठीक है, ये चीज बैक लूप चला दो मैक्सिमम नंबर से 2 तक, और फिर तुम ये देखोगे यहाँ पे हर आई टाइम्स में मैं अपना एसपीएफ ऑफ जे अपडेट कर रहा हूँ आई से। ठीक है, तो ये होते होते जब एंड में आएगा तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर स्टोर कर देगा हर इंडेक्स पे। इसके बारे में तुम कॉपी पेन लेके रिसर्च कर सकते हो, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, एन एम की वैल्यू ली, इनपुट ले लिया, फिर गए नीचे, ए बी की वैल्यू ली। ए ऑलरेडी प्राइम है, अब हमें बी के प्राइम फैक्टर से ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ यहाँ पे कि इन केस में 12, इन केस मेरा जो ट्रिगर है वो क्या है, 2 into 12। तो मैं क्या करूंगा, इससे ग्राफ कैसे बनाऊंगा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 into 2 into 3। ठीक है, फिर 2 के साथ उसका ग्राफ बना दूंगा, 2 की एडजेसेंसी लिस्ट में वो चीज डाल दूंगा। ठीक है, वही किया मैंने। while b is greater than 1 adjacency list of a में just push back स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b, और फिर उस b को स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो अब ये b अगर 12 था तो अब 6 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, फिर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब एक विजिटेड वेक्टर ले लिया टू मार्क द विजिटेड, फिर एक ओके ले लिया बूल। ठीक है, फिर ये लेमडा फंक्शन बनाया डीएफएस के लिए। ठीक, बाहर भी बना सकते हो तुम अगर सिंटेक्स टफ लग रहा है। अब सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा डीएफएस में, अभी डीएफएस को यहाँ पे रहने देते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, जहां पे मैं अपना आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो आंसर इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब n को 1 बनाना था, तो while n इज ग्रेटर देन 1, आंसर में क्या करना है तुम्हें, सिंपली आंसर में आंसर और डीएफएस को ऐड करते जाना था। सबसे पहले डीएफएस ऑफ एसपी ऑफ एन, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। सबसे पहले मान लो अगर n की वैल्यू 12 है, तो तुम 2 निकालने का, फिर 2 निकालने का, फिर 3 निकालने का, ऐसे। ठीक है, तो डीएफएस ऑफ 2 ऐड करो, और n को फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर से 2 ऐड करो, फिर से डिवाइड कर दो, फिर 3, फिर 3 से डिवाइड कर दो। अब डीएफएस देखते हैं कैसे लग रहा है तुम्हारा उस ग्राफ में। आए, सबसे पहले चेक कर लो कि कहीं डीएफएस ऑफ 2 ऑलरेडी निकाल तो नहीं लिया, रिटर्न कर दो अगर -1 वैल्यू नहीं है। फिर चेक कर लो कि कहीं ये लूप होल तो नहीं है, या फिर विजिटेड हो, ऑलरेडी 2 विजिटेड हो, या फिर ओके हो, तो रिटर्न कर दो 0 यहाँ से। ठीक है, ओके को अपडेट भी कर देना। अब यहाँ पे बूल और ओके, विजिटेड और ओके में क्यों ले रहा हूं मैं, ये चीज समझ लो। वो चीज रिपीट हो रही है, क्योंकि डीएफएस ऑफ 2 जब तुम निकालोगे, राइट, डीएफएस ऑफ 2 निकालोगे, तो एक बार तुम्हारा ओके अपडेट हो जाएगा, तो नेक्स्ट डीएफएस ऑफ 2 में ओके से ही तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक, आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं है तो पूछ लेना। एंड में विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल्स टू 1 किया, आंसर इज इक्वल्स टू 1 किया फॉर द सिंगल। 2 को निकालने में भी तो एक ऑपरेशन करोगे, डीएफएस ऑफ 2 निकाल रहे हो तो 2 को निकालने में एक ऑपरेशन। ठीक है, फिर उसके एडजेसेंसी लिस्ट में गए, और आंसर में एड वन ऑफ आंसर एंड डीएफएस ऑफ एक्स, उसके जितने भी चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा ये पूरा जितने भी चाइल्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आंसर में मिल जाएंगे। और एंड में अपने विजिटेड ऑफ नोड को 0 करना मत भूलना, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं विजिटेड एरे को एक बार बस मैंने बनाया है, तो जब दूसरा डीएफएस लगेगा तो वहां पे विजिटेड एरे अपडेटेड ना रहे ऑलरेडी, इसलिए विजिटेड ऑफ नोड को 0 करना मत भूलना। और रिटर्न कॉस्ट ऑफ नोड, और कॉस्ट ऑफ नोड भी अपडेट कर देना, आंसर अपडेट रिटर्न करना और कॉस्ट ऑफ नोड अपडेट कर देना। ठीक है, अब इन द एंड अगर तुम्हारा ओके कहीं भी ट्रू हुआ था,
इट मीन्स तुम्हारा लूप होल तुम्हें कहीं भी मिला था तो प्रिंट -1, अदरवाइज प्रिंट योर आंसर। सो थैंक यू guys फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ अगेन। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इस वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी था, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं चेक किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाओ चेक कर लो, रजिस्टर कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को एंड जस्ट गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।